دیکھو رات تو بہت ہو گئی ہے، اگر تم چاہ رہی ہو آنا تو میں گاڑی بھجوا دیتی ہوں۔ مجھے آنا ہوگا تو میں آ جاؤں گی، کیب کرا لوں گی، تب تک دھیان رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ اوکے، حافظ۔ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ طبیعت ابھی بہتر ہے ان کی ماشاءاللہ، صبح تک مزید بہتر ہو جائے گی۔ آپ کون؟ جی میں ان کی وائف۔ صبح جو ان کی سسٹر آئی تھی وہ چلی گئی کیا؟ جی وہ چلی گئی ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک، تو آپ مجھے بتائیں کوئی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے، جیسے کچھ باہر سے منگوانا ہو یا کوئی میڈیسن تو آپ بتا دیجیے۔ نہیں میم، ڈاکٹر صاحب نے خاص ہدایت دی ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ وقتی الجھنوں کی وجہ سے انسان کچھ تاریخیں اور دن بھول جاتا ہے، لیکن جو باتیں دل سے جڑی ہوتی ہیں وہ وقت اور لمحے کبھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ سچ سچ بتاؤ، کب سے میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اور جو بھی انفارمیشن ہے نا ایک ساتھ دے دو مجھے۔ ارے بھائی ثاقب، میں تو ہوں فارغ آدمی بھائی، سارا دن سڑکوں پر ایسے ہی گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ روشنی کا مینار۔ سمندر کے کنارے ایک قدیم مینار کھڑا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی روشنی کبھی نہیں بجھتی، کیونکہ وہ صرف آگ سے نہیں بلکہ نیک اعمال سے روشن رہتی ہے۔ ایک دن 17 سالہ فائز نے اس مینار کا راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح سویرے سفر پر نکلا۔ راستے میں اسے ایک ملا ملا جس کی کشتی طوفان میں ٹوٹ گئی تھی۔ فائز نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور سب نے مل کر کشتی کی مرمت کر دی۔ آگے ایک بوڑھی خاتون کا سامان بکھرا ہوا تھا، اس نے خاموشی سے سب کچھ سمیٹ کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ شام ڈھلتے ہی وہ مینار تک پہنچا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی محافظ نہیں تھا، صرف ایک پرانا دروازہ تھا جس پر لکھا تھا، روشنی دیکھنے والا ہر شخص نہیں، روشنی بھنگنے والا ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہی فائز نے دروازہ کھولا، وہ ایک گول کمرے میں داخل ہوا۔ درمیان میں ایک چراغ جل رہا تھا، مگر اس میں نہ تیل تھا نہ بتی۔ چراغ کے ساتھ ایک کتاب رکھی تھی جس پر لکھا تھا، ہر نیکی اس چراغ میں ایک نئی روشنی کا اضافہ کرتی ہے اور ہر خود غرضی اس کی چمک کم کر دیتی ہے۔ فائز نے کتاب بند کی اور سمجھ گیا کہ مینار کا راز کسی جادو میں نہیں بلکہ لوگوں کے کردار میں ہے۔ وہ گاؤں واپس آیا اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر تعلیم، صفائی، شجرکاری اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ایک تنظیم قائم کی۔ کچھ ہی برسوں میں وہ ساحلی گاؤں پورے علاقے میں ترقی، اتحاد اور خوشحالی کی مثال بن گیا۔ جب کسی بچے نے فائز سے پوچھا کیا وہ چراغ آج بھی جل رہا ہے، فائز نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جب تک دنیا میں نیکی کرنے والے لوگ موجود ہیں، روشنی کا وہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ سبق: حقیقی روشنی چراغوں سے نہیں بلکہ انسان کے نیک اعمال، خدمت اور اچھے کردار سے پھیلتی ہے۔ روشنی کا مینار۔ سمندر کے کنارے ایک قدیم مینار کھڑا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی روشنی کبھی نہیں بجھتی، کیونکہ وہ صرف آگ سے نہیں بلکہ نیک اعمال سے روشن رہتی ہے۔ ایک دن 17 سالہ فائز نے اس مینار کا راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح سویرے سفر پر نکلا۔ راستے میں اسے ایک ملا ملا جس کی کشتی طوفان میں ٹوٹ گئی تھی۔ فائز نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور سب نے مل کر کشتی کی مرمت کر دی۔ آگے ایک بوڑھی خاتون کا سامان بکھرا ہوا تھا، اس نے خاموشی سے سب کچھ سمیٹ کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ شام ڈھلتے ہی وہ مینار تک پہنچا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی محافظ نہیں تھا، صرف ایک پرانا دروازہ تھا جس پر لکھا تھا، روشنی دیکھنے والا ہر شخص نہیں، روشنی بھنگنے والا ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ جیسے ہی فائز نے دروازہ کھولا، وہ ایک گول کمرے میں داخل ہوا۔ درمیان میں ایک چراغ جل رہا تھا، مگر اس میں نہ تیل تھا نہ بتی۔ چراغ کے ساتھ ایک کتاب رکھی تھی جس پر لکھا تھا، ہر نیکی اس چراغ میں ایک نئی روشنی کا اضافہ کرتی ہے اور ہر خود غرضی اس کی چمک کم کر دیتی ہے۔ فائز نے کتاب بند کی اور سمجھ گیا کہ مینار کا راز کسی جادو میں نہیں بلکہ لوگوں کے کردار میں ہے۔ وہ گاؤں واپس آیا اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر تعلیم، صفائی، شجرکاری اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ایک تنظیم قائم کی۔ کچھ ہی برسوں میں وہ ساحلی گاؤں پورے علاقے میں ترقی، اتحاد اور خوشحالی کی مثال بن گیا۔ جب کسی بچے نے فائز سے پوچھا کیا وہ چراغ آج بھی جل رہا ہے، فائز نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جب تک دنیا میں نیکی کرنے والے لوگ موجود ہیں، روشنی کا وہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔
सबक हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक अमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक अमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था। उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक अमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक अमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था। उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक अमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक अमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था। उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है।
वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था, उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था, उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था, उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है।
जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था, उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था, उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी।
फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था, उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा, क्या वो चिराग आज भी जल रहा है? फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बुझती, क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था, उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा, क्या वो चिराग आज भी जल रहा है? फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बुझती, क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था, उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा, क्या वो चिराग आज भी जल रहा है? फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा।
सबक हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक अमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बुझती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक अमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था। उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक अमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बुझती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक अमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था। उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक अमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बुझती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक अमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जुमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था। उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बंटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है।
वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था। उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बांटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था। उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बांटने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला, वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बचती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था। उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात यह थी कि वहाँ कोई मुहाफिज नहीं था, सिर्फ एक पुराना दरवाज़ा था जिस पर लिखा था, रोशनी देखने वाला हर शख्स नहीं, रोशनी बांटने वाला ही आगे बढ़ सकता है।
जैसे ही फाइज ने दरवाज़ा खोला वो एक गोल कमरे में दाखिल हुआ। दरमियान में एक चिराग जल रहा था, मगर इसमें ना तेल था ना बत्ती। चिराग के साथ एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, हर नेकी इस चिराग में एक नई रोशनी का इजाफा करती है और हर खुद गर्जी इसकी चमक कम कर देती है। फाइज ने किताब बंद की और समझ गया कि मीनार का राज किसी जादू में नहीं बल्कि लोगों के किरदार में है। वो गांव वापस आया और नौजवानों के साथ मिलकर तालीम, सफाई, शजरकारी और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए एक तंजीम कायम की। कुछ ही बरसों में वो साहिली गांव पूरे इलाके में तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली की मिसाल बन गया। जब किसी बच्चे ने फाइज से पूछा क्या वो चिराग आज भी जल रहा है, फाइज ने आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब तक दुनिया में नेकी करने वाले लोग मौजूद हैं, रोशनी का वो चिराग कभी नहीं बुझेगा। सबक: हकीकी रोशनी चिरागों से नहीं बल्कि इंसान के नेक आमाल, खिदमत और अच्छे किरदार से फैलती है। रोशनी का मीनार। समंदर के किनारे एक कदीम मीनार खड़ा था। कहा जाता था कि इसकी रोशनी कभी नहीं बुझती क्योंकि वो सिर्फ आग से नहीं बल्कि नेक आमाल से रोशन रहती है। एक दिन 17 साला फाइज ने इस मीनार का राज जानने का फैसला किया। वो सुबह सवेरे सफ़र पर निकला। रास्ते में उसे एक मला मिला जिसकी किश्ती तूफान में टूट गई थी। फाइज ने गांव वालों को जमा किया और सब ने मिलकर किश्ती की मरम्मत कर दी। आगे एक बूढ़ी खातून का सामान बिखरा हुआ था, उसने खामोशी से सब कुछ समेटकर उनके घर पहुंचा दिया। शाम ढलते ही वो मीनार तक पहुंचा। हैरत की बात ये थी